Hi. 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 How are Busy in you? my house. Good. You tell me. I'm great. You're working somewhere. No, I was at my place only. I was actually busy, Supasa. There was so much to do. Oh yeah, I know. You're busy Hmm. with the shoot and all. Even I saw you on television last night. I was just watching your show. So sweet, so sweet. Well, मुझे सब बहुत टाइम से hi, बोल रहे हाँ थे आप हाँ. लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ लो आ गई लाइव Lucky me, because she's live with me. It's the reason that I'm live today. So guys, say thank you for her. You can say thank you for her. Oh, ma'am, thank you so much. So, ma'am, tell us something about your recent project that you're working, your recent show that you are working with people, or Okay, you're working in a show. so Yeah. abhi, I mean, yes, I have this thing कि अभी I'm just thinking to work. I'm just open my fields. पहले भी I was open for all the projects, but all has to be very decent, typical type of a project जिसमें performance oriented होने चाहिए. मतलब वो I really don't want to be a beautiful part of the show. मतलब एक होता है ना ऐसे beauty side होता है, एक होता है performance side भी होता है. I wanted to be that positive side of the show जिसमें performance होता है या फिर कुछ होता है. Yes, I'm working on Z right now for तुझसे राब्ता and it's a good show. But कहते हैं ना कि you still want to do something else. So yes, of course, I'm looking something else even though. But beside this, क्योंकि everything what you do it should not be planned things I really don't feel like they work out for me, so I'm not planning anything, but yes, I'm for sure open for most of the project. So मैं बस crossing my fingers, I'm waiting that अच्छी चीजें should happen. Yeah. I know, I have heard many things like that. You have worked in many TV serials, many. There are like plenty. बहुत लंबी लिस्ट है. जब मैं लिस्ट बनाने बैठी, I was like, okay, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है. So I want to ask one thing that आपके लिए सबसे memorable शो कैसा रहा? कौन सा रहा आपके लिए? मुझे हर शो से एक मेमोरी मिली है, मैं सच बताऊं तो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर शो में ना कुछ इज वेरी ब्यूटीफुल. लाइक एज इफ आई स्टार्टेड वर्किंग इन बिग बॉस, तो उसमें मुझे परी जैसा नाम मिला, माय वेरी फर्स्ट शो. उसके बाद फिर आई स्टार्टेड डूइंग सम अदर शो, उसमें भी देयर वाज अ नेम. देन आई हैव डन बडी प्रोजेक्ट, उसमें कुछ और था. तो हर कैरेक्टर का डिफाइनिंग, हर कैरेक्टर का परफॉर्मेंस, हर कैरेक्टर का लिविंग वे, हर कैरेक्टर इज वेरी वेरी डिफरेंट. Though I'm very much attached to my very last show, which gave me a comeback on television, that is Star Plus का दिव्य दृष्टि, क्योंकि वो बहुत मजेदार था. And that's the only show where I look the most beautiful on screen. So of course I'll always be glad, of course. Even I have seen that you are kept working. मतलब आपने अपने आप को काफी जगह एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा है. मैंने ये नोटिस किया आपके हर शो में that you were experimenting on yourself. That's why you are switching the show. So I feel that. I switched shows like anything. I used to shoot for two shows, two, three shows at a time because I wanted to experiment a lot. मेरे से अगर कोई बड़ा शो है, अगर कोई लीड शो है, तो इट्स ओके बिकॉज यू हैव टू बी द like contract for a year or two, whatever the time being show is there. But if you are not, then you can experiment like anything. Like no one can block you, no one can block your all dates, because then what happens, I mean, you have time to experiment with your, because एक ही चीज आप रोज करते हो, एक साल तक करते हो, तो आई फील लाइक वो टाइम भी बहुत लेता है. और आप लीड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लीड नहीं हो तो आई थिंक यू शुड एक्सपेरिमेंट. Okay, so how your journey started? Because मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैं अंदाजा नहीं लगा पाई कि आपने कहाँ से शुरुआत की. कुछ नहीं है. How started? I did one reality show in my hometown. That was Big Magic पे था, because Big Magic तब लॉन्च हुआ था, so that was Big Fame Star. उसके बाद I started like giving auditions, and मैं बॉम्बे बहुत कम दिन के लिए आई थी. और उसके बाद मतलब मैं सिर्फ एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं स्ट्रगल करके वापस भी चली गई थी. Then I have to come back. Okay. Yeah. So I feel like if this city wants you, if you're gone, this city will call you. अगर आप नहीं हो यहाँ से तो फिर वो वापस नहीं आओगे. मतलब ऐसा कुछ है. There is something. So I always do this thing. Whenever I'm tired, I am sick, I always leave. And I just leave. You know what? What is the thing that running in my mind, that I have planned many questions for you, and you're just giving the answers right now. I was like, okay.
Okay, so one thing I want to ask, ma'am, like if somebody wants to start their career in TV serials, so like your experience, so according to you, what are the best things that they can start from? किस तरह वो अपना करियर टीवी सीरियल से स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि टेलीविजन में, जैसे कि अभी मेरी बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे से बात हुई थी, who's a part of TV even. So we had a nice conversation कि why people are not getting a good chance on television, because it's not about that I worked so much. It's all about because I had firms that support. I was willing to stay, and मेरे साथ ऐसा था कि I just wanted to be here and do something in my life by my own, okay? But in television nowadays पुरानी बातें छोड़ देते हैं, तो आज के टाइम पे बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है. इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं होता है, वो आते हैं, ढूंढते रह जाते हैं और नहीं मिल पाता है. So I asked him कि why this is happening. So he was like, dude, we have only 20 shows getting launched. Okay. So हम अगर 10 से 12 shows भी साल के लॉन्च करते हैं या 20 भी करते हैं, हमारे पास आर्टिस्ट 1000 हैं. And now out of those 1000 people, how we gonna give a chance to a new person? So that's how they do it now कि या तो वो नोन लेते हैं, बहुत नोन पर्सनालिटी उठाएंगे जो टीवी पे 1000 बार लीड कर चुका होगा. Being very honest on the fact of this, because I deny to be a liar in this field, or even both the things. So क्या होता है ना कि चीजें कहीं ना कहीं लोगों को निराश भी करती है, क्योंकि वो कहते हैं कि अरे यार I look better than this person, my age goes this, why this person is getting selected, because that person has done so many shows behind, that person has made, उसने contacts बनाए हुए हैं, उसका scenario of working was the same with the same team. अब क्या होता है कि अगर किसी नए फेस को लॉन्च किया जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इसी पे किया जाता है कि भाई एक तो बजट कम था, सेकेंडली हमें नया फेस लॉन्च करना था, और मुझे नहीं लगता एक्टिंग से ज्यादा कुछ लेना देना टेलीविजन में बहुत सारे लोगों को है, because I've been through it. So guys, it's अब वैसे भी बहुत सारे लोग जो ऑडिशन देने आते हैं या करने आते हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब भी नहीं होता, आधे लोग तो सिर्फ लुक्स पे ही उठ के चले आते हैं. So right now it's so much of गड़बड़ going on ना, like so much of इतना हावी हो चुके हैं ना लोग एक दूसरे पे कि उन्हें खुद ही नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं. वो बोलते कुछ है, करते कुछ है. उन्हें चाहिए होता है कि अरे we gonna select some character of 20, 24, 25, select करते हैं 35. So उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, because they were okay fine, no this she's a known artist, हमें TRP आ जाएगा, फिर वो शो फ्लॉप हो जाता है. So अभी रिसेंटली बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे बहुत सारे शोज फ्लॉप हुए हैं, which is I mean I can tell you like ऐसे फ्लॉप हुए हैं, 4 महीने 5 महीने में बंद हो गए. वो उन्हें सिर्फ 6 चलाना था, 6 months तक तो चलाया है. So guys, if you are studying to study well, I will not support like for this कि आप आओ फिर आप लाइफ में स्ट्रगल करके भी अपने अचीवमेंट्स को डिनाई करते हुए यहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंस हो जाओ बहुत, क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस लो होता है अगर आप हारते हो, और तब हारते हो जब आप एक्चुअली डिजर्व करते हो. आई स्टिल थिंक कि काश मैंने वही किया होता, बट आई नेवर रश थ्रू द ग्लैम वर्ल्ड, इट जस्ट हैपेंड टू मी, दिस फील्ड जस्ट हैपेंड टू मी रियल में. बट अगर मैंने खुद को अगर ज्यादा पुश नहीं किया होता ना, तो शायद अगेन आई वुड बी अ गुड आर्मी ऑफिसर ऑल्सो. सो दिस इज हाउ इट इज. बट जो लिखा है वो होकर रहेगा, जो है वो that is written, that is destined for you. So I feel that this field was destined for me हमेशा से. But I don't rush for anything. जो लोग करते हैं ना वैसा. Okay, so my next question is that don't you agree that TV serial industry is still struggling with the content? They don't work on the story. They are not struggling only. Who said? Who told you they're struggling? Who told you they're struggling? I'm telling you they don't need to struggle only. देखो स्ट्रगल वहाँ होता है जहाँ मेहनत होती है, उन्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. वो एक ही आदमी की 2 शादी दिखा सकते हैं, और दूसरे शो में वो एक ही लड़की के 2 हस्बैंड दिखा सकते हैं, तीसरे शो में किसी को सांप बना देते हैं, किसी को बिच्छू बना देते हैं. टीवी दे डोंट नीड टू स्ट्रगल. स्ट्रगल कहाँ आता है? जहाँ वेब्स बन रहे हैं, जहाँ न्यू कंटेंट लाने की बातें हो रही हैं. इवन आई डोंट फील कि बॉलीवुड में भी स्ट्रगल है, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रगल करने की कोई जरूरत लग नहीं रही है मुझे. जैसा कि मैंने
क्या बोलते हैं, ये फिल्म का ट्रेलर देखा था, सड़क, लिटरली उन्होंने बॉम्बे की आजकल की वो बीएमसी की ना काम करने वाली सड़कें देखी होंगी, उसे देख के फिल्म बनाई है। सेम, आई मीन जस्ट सेम। मैंने अपने घर के बाहर की सड़क देखी है भाई, बहुत बुरा हाल है बॉम्बे का। सेम इज विद द मूवीज राइट नाउ, सो इट्स ओके, दे आर नॉट स्ट्रगलिंग डार्लिंग, यू डिनाइंग द फैक्ट, दे आर नॉट स्ट्रगलिंग। स्ट्रगल तो वो लोग कर रहे हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं जो अच्छा लिखकर लेकर जाते हैं और कहते हैं सर इसे पढ़िए, हमने कुछ अच्छा लिखा है। उनकी गलती भी नहीं है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, हमारी ऑडियंस, जैसे कि हमने नेपोटिज्म को डाइजेस्ट किया, हमने खुद उसे बढ़ावा दिया, सेम इज विद द कंटेंट ऑफ टेलीविजन। सो अगर हम वहां पे कुछ फ्रेंड्स जैसा लेकर जाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। वहाँ बहुत सरकाज़म है, वहाँ बहुत क्रिएटिविटी है, वहाँ बहुत टैलेंट है, वहाँ बहुत परफॉर्मेंसेस हैं और बहुत बहुत मैच्योर एक्टर्स हैं, डायरेक्शन है, बहुत सारी चीजें मायने रखेंगी। यहाँ हम फ्रेंड्स बनाते हैं ना, वो जो एक पता नहीं कौन सा 90s में जब शायद माय मॉम गॉट मैरिड, तब एक बहुत ही बकवास सा शो आया था। क्यों आया था? I saw Nikhil Chinappa was there. In that show, Nikhil Chinappa is there. Why? I mean, why? If you wanted to, chalo, make a copy also, make a right copy, dude. At least don't make real friends feel bad. I mean, उन्होंने देख लिया होता तो वो friends का नाम बदल देते। They could have changed the name. They're like, no, we are not friends, we are buddies. Friends change to buddies, you imagine. So, बोलते नहीं, फ्रेंड्स तो इंडिया में बनाया उन्होंने। एक्चुअली इंडिया में फ्रेंड्स नहीं बनाया, इंडिया में फ्रेंड्स बनाया। हम लोगों ने फ्राइड फ्रेंड्स बनाया है। So this is how they don't cry for content, darling. हमारी ऑडियंस जो चाहती है वो देते हैं। और there are, I've seen many talented and brilliant writers who be just roaming around. They are not getting work and jobs. Now they are actually getting work in web series and all, like, yes. So, but what happens? अभी भी television, I don't think so they'll grow, because अभी भी उसी content में फंसे हुए हैं जहाँ बीवी को प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ सास बहू को गाली देती है, जहाँ सास बहू में कभी नहीं बनती, जहाँ बेटी भाग जाती है या बेटा ड्रग एडिक्ट होता है या फिर पति की 3 शादियां होती हैं या तलाक होते हैं। बिकॉज हम वो चीजें खुद अपने लोगों को दे रहे हैं परोस के, और हमारे लोग सामने से थाली हाथों में ले रहे हैं। तो it's okay. So they don't need to struggle. Struggle word is not the word they should add in their dictionaries, because struggle हम जैसे लोग करते हैं, तुम मेरे जैसे जो अपनी लाइफ में आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं। I don't think so television of India wants to do something real in their life, because they have done, whatever real they can do is just dance shows, is the talented reality shows again. बहुत गरीबी को ओरिएंट करके अगेन, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें से बहुत ही टैलेंटेड लोगों को चांस मिल जाता है। वो थोड़ा सा रियल कॉन्सेप्ट लगता है जो रियलिटी शोज का होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डांसिंग रियलिटी शोज, सिंगिंग रियलिटी शोज, ओके? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस। I don't watch Big Boss. So this is how, oh my God, this is the reality. I think I see that industry, the TV serial industry is not evolving. They're just like going back. They don't want to. कोई आगे बढ़ते हैं। हाँ, they don't want to, yeah. क्योंकि लोग देखेंगे नहीं। सच बात तो ये है ना, देख लो ना, अभी भी कुछ हमारे तुझसे राब्ता के फैंस यहाँ पे कमेंट किए जा रहे हैं, भैया उन्हें समझा दो, शो मैं नहीं लिखती, क्रिएटिव लिखते हैं। यहाँ कमेंट करने से अच्छा है ना वहां जाके लिखो, पागल लोग। पहली बात तो उसका पति नहीं है। And I'm playing a character. Stop behaving shit here on my page. हम कचरा दिखा रहे हैं और आप कचरे के लिए यहाँ पागल हो रहे हो मेरे पेज। So what I'm saying कि लोग हमारे टेलीविजन शोज कितना असर डालते हैं इन पागलों पर कि this is what the audience ना, that's why I'm saying कि वो लोग इवॉल्व नहीं कर सकते। अब इन जैसे लोगों को आप नहीं दिखा सकते ना अच्छा काम, अच्छी चीजें। ये लोग क्या देखेंगे? एक कचरा देखेंगे। अरे इसकी 2 शादी हो गई है, अरे दूसरी वाली बड़ी बुरी है, इसने इसका पति छीन लिया। इन्हें गधों को ये समझ में नहीं आता कि स्क्रिप्ट है वो। हम क्या अपने घर से लिख कर लेके जाते हैं?
भाई मेरा काम है, मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे उस चीज के लिए सिलेक्शन किया गया है, मैं वहां जाती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, घर आ जाती हूँ। आपको बुरा लगता है आप चैनल को कमेंट करो, मुझे नहीं। बेवकूफ लोग। वही नहीं वही अगर किसी के साथ बुरा हो जाए, किसी के मुंह पे तेजाब गिर जाए, या फिर क्या बोलते हैं वो जो हैदराबाद वाला केस हुआ था लड़की के साथ, वही ये लोग बैठ के ना उन लोगों को बुरा कह रहे होंगे, उन 4 लोगों को जिन्होंने उस लड़की के साथ बुरा किया। यहाँ आप बैठ के हर किसी के पेज पे बकवास करते हो, वो भी कंपैरेटिवली सेम ही है डूड। हैरेसिंग समवन बाय राइटिंग शिट एंड डूइंग समथिंग बैड टू समवन इज जस्ट द सेम। ये करना और रेप करना कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आके बकवास ही कर रहे हो लड़कियों के पेजेस पे। So hopefully you understand. Respect your mother and respect everyone's sister and mother. Idiots. बोलो। हाँ, these people यार योग्यता। मतलब मुझे रोज एक मैसेज आ जाता है, आप क्या अवनी ने उसका किसका, हाँ कल्याणी का हस्बैंड छीन लिया। भाई मैंने नहीं छीना, मुझे तो 2 साल का शो भी नहीं पता है, मुझे तो अभी फाइनल लेके गए, मुझे तो उनके कैरेक्टर्स भी नहीं पता है। मैं सिर्फ अपना पार्ट प्ले करती हूँ, घर आ जाती हूँ। उसकी मम्मी कौन, उसके पापा कौन, मेरे शो में मेरे पापा नहीं पता है अभी तक मुझे। क्योंकि वो कास्ट हुएंगे तभी मुझे पता चलेगा। I'm telling you, you laugh. I'm telling you, तुम अपना खून बढ़ाओ, क्योंकि मुझे भी अपना खून बढ़ाना है। मगर ऑडियंस भी तो वही डाइजेस्ट कर रही है ना। आज तक आप मुझे बताओ कि हम लोग भी तो करण जौहर की ऊल जलूल फिल्में देख ही रहे थे ना। आज को उससे सुशांत के जाने के बाद हमने उसे बॉयकॉट करने की सोची, अगर पहले सोची होती तो आज को शायद इतना ज्यादा हम कचरा देख भी नहीं रहे होते और वो लोग इतना कचरा बना भी नहीं रहे होते। What I feel like कि once you say no, people are not forcing to do anything. हमने ही नहीं कभी ना बोला किसी चीज को देखने के लिए, तो वो बनाते गए। आज अगर हम किसी एजेंडा के पीछे किसी को बुरा बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बाकी की 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। अगर मैं तुम्हें ऐसे करके तुम गलत बोलूंगी तो बाकी की 4 उंगलियां is like me. So that's what is with the audience of television or with the Bollywood audience कि भाई जो बना रहे हो हम देख लेंगे। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 बनाई, हम देखेंगे। स्टूडेंट ऑफ द 2 बनाई, हम देखेंगे। आप तीसरा भी किसी बच्चा लॉन्च कर दोगे किसी का, आप कल को तैमूर को लॉन्च कर दो तो भी हम वो देख लेंगे, भले ही वो परफॉर्म करे या ना। बहुत भाग के देखेंगे लोग पागल रहते हैं तैमूर के पीछे। ये सारे लोग ना बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है, मैं बता रही हूँ। बिकॉज व्हाट हैपेंस, हम मुंह पे नहीं बोल पाते। हम जब बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी या फिर यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी भाषण लिखने होंगे तो लोग खड़े होंगे ये वो कर देंगे, बट जब देखने की बात आएगी तो ये वो करने वाले सबसे पहले थिएटर में सबसे आगे वाली सीट पे बैठ के फिल्म देख रहे होंगे। I really love you. I really love your whatever you are saying. Seriously, because ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। I am searching for these kind of people like you कि at least सच बोलो मतलब मैं क्या बोलूं अभी इन लोगों को, मुझे बताओ। और who am I to teach them the right thing? We are nobody to them. ये देख लो ना, अभी तो मेरे पेज पे वो लिख सकते हैं कि अवनी इज बैड, तो उनका मानसिक संतुलन कितना खराब हुआ है इस टाइम पे, कितना ज्यादा खराब, उन्होंने कितना गोबर खाया हुआ है वो पता चलता है। बिकॉज क्या होता है क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आपको एक बात समझ नहीं आती कि भाई टीवी के कैरेक्टर्स नकली होते हैं, उनकी खुद की पर्सनल रियल लाइव्स होती हैं, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है। वो नहीं कहते कि हमें नेगेटिव प्ले करना है, वो नहीं कहते कि हमें किसी का खून करना है, उन्हें शौक नहीं है रियल लाइफ में, हमें कोई शौक नहीं है। और इसीलिए मैं आधे से ज्यादा फैन से बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बकवास करते हैं यहाँ बैठ के। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि मुझे बकवास पसंद नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आई फील दैट क्या बोलते हैं, एक्चुअली गोबर खा लो। सारे जो जितना बकवास शो देखते हैं ना, सब गोबर खाओ बैठ के। वेरी डम थिंग। उल्टा मालूम है क्या होना चाहिए, अगर आप किसी सेलिब्रिटी के पेज पे लिख रहे हो तो आपको उल्टा ये लिखना चाहिए कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो कि हमें वो इम्पैक्ट करता है और हमें लगता है आप सच में ऐसा कर रहे हो, या फिर आप सच में किसी के साथ बुरा कर रहे हो। और अभी तक तो मैं नेगेटिव हूँ भी नहीं उसमें, मैं एक्चुअली शो में नेगेटिव ही नहीं हूँ। डम्स दिस इज वेरी डम थिंग कि लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं।
मैं तो मासूम सी लड़की हूँ शो में, जिसको कुछ नहीं पता, जिसके पति ने उसे झूठ बोला हुआ है, मतलब मल्हार ने उसे झूठ बोला हुआ है कि उसकी पहली पत्नी उसके सामने खड़े होते हुए भी तो एक्चुअली नेगेटिव बोलोगे हुए, देखा जाए तो, कि आप एक लड़की है जो प्रेग्नेंट है 4 मंथ, जिसका बॉयफ्रेंड भाग चुका है या जो मार दिया गया है, उसे कोई सच्चाई नहीं बताई गई है और वो अपनी हैप्पी लाइफ जी रही है, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मल्हार ने. सो दिस इज हाउ द स्टोरी इज. दैट्स व्हाट आई से कि इंडियन ऑडियंस को समझ नहीं आती है बातें. वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं और वो गालियां देते हैं लोगों को. मैंने बहुत देखा है, वो बहुत ही गलत होता है. आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली नहीं दे सकते. अगर आप किसी और को गाली देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को गाली दे रहे होते हो. तो अगली बार से किसी और को कुछ लिखने से पहले, मुझे नहीं, बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा है, ये लोग लिख रहे होते हैं बुरा सड़ा. मैं पहले भी लाइव आती थी, दे यूज्ड टू राइट नेगेटिव अबाउट द नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ माय लास्ट शो. तो मुझे बड़ा बुरा लगता था. मैं सोचती थी कि यार इन लोगों को पता नहीं है कि लोग कैसे होते हैं, अपनी लाइफ में कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, और ये लोग खुलेआम गाली देते हैं. तो कहीं ना कहीं आप किसी और को देने की जगह ये सोचा करो कि आपको सीधा वो आप, क्योंकि हमें तो नहीं सुनाई दे रही ना, आप लिख के चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कहीं ना कहीं आपके माँ बाप ने वो आपको सिखाया और आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो. आप खुद के पैदा होने को गाली दे रहे हो. सिंपल. This is what I feel. Bad words are not used for others. Bad words are used for yourself, for what you are and who actually what you gonna do in your life. Okay, so एक और क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए. Don't you think that अभी तक फिल्म इंडस्ट्री, because आपकी एक फिल्म भी आ चुकी है, so according to you, फिल्म इंडस्ट्री अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई कि what is the definition of hero and heroine, क्योंकि उन लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आया कि डेफिनेशन हीरो और हीरोइन की क्या है. What do you think about it? तो देखो, मोस्टली फिल्म्स में, जैसे कि if I tell you, तो there are very rare actors जो फिल्म में अपनी हीरोइंस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि आमिर खान हो गया, या फिर या यू कैन से कि आई हैव सीन शाहिद की अभी रिसेंट फिल्म जिसमें तब्बू वाज देयर एंड श्रद्धा वाज देयर एंड तो देयर आर वेरी रेयर फिल्म्स. हाँ, मतलब देयर आर वेरी रेयर फिल्म्स लाइक पद्मावत हो गई, या फिर प्रियंका चोपड़ा के साथ खून माफ हो गई, या फैशन हो गई. तो ऐसे बहुत कम फिल्में हैं जहाँ लड़कियों को डमी बनाकर यूज नहीं किया गया है, जहाँ पे एक्चुअली उनकी कैपेसिटी, जैसे कि तनु वेड्स मनु हो गई. Why I should not say Queen? क्योंकि यहाँ पे Queen is the only film that represents female. Yes, and even fashion, and even क्या बोलते हैं, सात खून माफ. I mean, these are the films where कहानी सात खून माफ. हाँ, जहाँ पे एजेंडा ये नहीं था कि हमें हीरो के साथ एक खूबसूरत सी लड़की दिखाने खड़ी करनी है, गाने में नचा देना है और रोमांस दिखा देना है, लड़की का काम खत्म. So, इन फिल्मों की वजह से ही हमारी एक्ट्रेसेस जो बहुत बड़ी बड़ी स्टार्स बनी आज के टाइम में. आई रियली रिस्पेक्ट प्रियंका चोपड़ा बिकॉज शी बिलोंग्स टू बरेली. फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके मम्मा पापा भी डॉक्टर्स ही हैं, मेरे मॉम डैड भी डॉक्टर्स ही हैं. एंड सेकेंडली, व्हाट शी हैज अचीव्ड इज ऑल हर टैलेंट. वो आज को अगर इंटरनेशनल सुपरस्टार है, वो इसीलिए है क्योंकि उसने खुद को अचीव किया है. उसने इन सारे एजेंडाओं से झगड़ा करके ना आगे निकली है. एंड आई रियली फील लाइक कि you are nobody to talk about anyone's personal life. It's always talk about the profession, and she has proved herself in her profession, and she's not answerable to these idiots or anyone who's talking shit about her. Don't you think that आने वाले टाइम में, मतलब even in ये इस साल के एंड तक वेब सीरीज जो है वो फिल्मों को ओवरटेक कर लेंगी? बिकॉज मुझे लगता है ऐसा कर चुकी है काफी हद तक. वरना बड़ी बड़ी फिल्में अभी Amazon पे और Netflix पे रिलीज नहीं हो रही होती इतनी आसानी से. क्योंकि देखो, बहुत सीधी सी बात है, ये सारी चीजें अगर नहीं हुई होती तो हम लोग के फोन में, हर आदमी के फोन में आज को Amazon और Netflix नहीं होता. तुम्हारे फोन में है, मेरे फोन में है, और भी लोगों के फोन में होगा. सो इसीलिए है बिकॉज उस पर बहुत सारा कंटेंट अच्छा आता है जो हम देख पाते हैं और हमें अच्छा लगता है. जैसे अभी बीच में आया था क्या बोलते हैं, बंदिश बैंडिट्स. What a musical show. I mean, I love the show and I've seen the last episode twice. मैंने उसका लास्ट एपिसोड 2 बार देखा, इसीलिए क्योंकि वो इतना खूबसूरत था, मुझे गूज़बम्स आ गए थे. Mostly some of the scenes were so beautifully done, actually beautiful. So this is how it is. There are some things which are coming up very beautifully and I don't feel like कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो Amazon और इस पे चल रहे हैं कि हमें फिल्में
नहीं देखने की भी जरूरत पड़ेगी आज के आने वाले वक्त में। हम थिएटर्स नहीं भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, so let's have a rapid fire round क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत फायर हो चुकी है। अच्छा है ना, you enjoy, we enjoy, my fans are enjoying, everyone is enjoying, everyone is enjoying. I am lucky. I didn't know about you that you are a fire. You are a female fire. मैं तो भाई बहुत, ये जानते नहीं है ना, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हूँ ना जो मुझे बुरा लग जाएगा या मैं करूंगी। भाई बंदूक चलाई है मैंने 6 साल, ऐसी नहीं आर्मी में पैर घिसे थे, तो तुम जैसे को समझाना आता है मुझे। Your favorite actor or actress? Okay, so I had a dream to work with Irfan Khan, and now I feel sorry, but I don't know. I always wanted to be a part of his venture, and I feel somehow not working with him, but seeing his work, उनका काम हमेशा मैंने सिर्फ थिएटर्स में देखा है, चाहे वो लंच बॉक्स हो गया या अंग्रेजी मीडियम हो गया या हिंदी मीडियम हो गया। तो अंग्रेजी मीडियम तो खैर हम सब ने अमेजोन पे देखी होगी, बट हॉटस्टार पे, बट अगर वो थिएटर में लॉन्च हुई होती और कोरोना नहीं होता तो आई वुड हैव सीन द फर्स्ट शो ऑन द फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट सीट। सो आई फील लाइक नॉट बिकॉज ही इज नो मोर, बट येस। एंड इन एक्ट्रेसेस तो प्रियंका, in Indian, if I knew it. Your favorite TV serial that you want to be a part of? I want to be a part of Nagin Venture. When I was writing this, I was expecting your answer. I mean, consider. Oh my gosh. I love those Nagins, हाँ, ऐसे करके जो beautiful. CG करते हैं ना ये लोग. Oh my God, that's so cute. That's so cute. So of course, Nagin Venture at the end of the day, again, it's so cute. So I want to. It's a cute show. So what was the best vacation you ever had? Best vacation I had 3 महीने का कोरोना at my hometown. Nice. Okay. Your favorite Indian food? My favorite Indian food, घर का खाना, मॉम के हाथ का बना हुआ. That's what. I'll just anything made by my mom's hand. I love veg nice. food, and he just cooks it so well. Okay, share your awkward moment on set. Awkward situation happened when there was my co-actor in my last show. उसने कुछ बोला था and I replied him very bluntly on face कि dude, अगर तेरे को dialogues पसंद नहीं आते तो तू creative को बोल दे, but मैं तो ऐसे ही बोलूँगी. Oh my God. Then what was the reaction? Reaction was like, अरे हम तो मजाक कर रहे थे. मैंने कहा मुझे मजाक पसंद नहीं है. अरे what happened कि मैं shoot कर रही थी and he was making fun of it, okay? मैंने तो नहीं लिखे डायलॉग्स, आई एम जस्ट अ परफॉर्मर, ओके, एंड आई कांट चेंज द डायलॉग्स एवरी टाइम, ओके. मैं पूछ के चेंज कर भी लेती थी, बट वो शो ऐसा था कि मैं हर बार चेंज नहीं कर देते. सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिव्य दृष्टि. सो देयर वाज दिस मेल एक्टर, को एक्टर, एंड उसका एक पूरा ग्रुप था, तो वो पूरा हंस रहे थे एंड आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड एंड आई वाज लाइक डूड, अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो वो रिक्रिएटिव, माइक वाज ऑन स्पीकर, वो रिक्रिएटिव, कॉलर एंड आस्क टू चेंज द डायलॉग्स क्योंकि तुझे पसंद नहीं आ रहा है. मैं तो ऐसे ही बोलूंगी. Right, okay, you did the right thing. एंड इसमें माता आई है, ओके, अभी सिमरन गरजेगी. I stopped getting angry on people now, so it's okay. Okay, ma'am. So, what I was asking, I was just lost. Even I'm lost. I'm happy. I'm feeling so positive with you. Now you're such a positive soul that a person can share very good things with you. Like this is not a place where, because ये सारी जगहें जो लाइव सोशल मीडिया प्लेसेस होती है ना, यहाँ लोगों को बातें करना और सच बातें करना बहुत जरूरी है. वो चिपनी चपड़ी बातें करके आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में. सो दिस इज व्हाट आई फील लाइक. आज ऑटोमेटिकली मैंने आपके लिए ऐसे सवाल रखे. आई डोंट नो व्हाई. I don't know, and they're very real and they're very good. I got connected to all of them. Yeah. Okay, so मैं क्या पूछ रही थी मैं भूल चुकी हूँ, पर मैं ये जानना चाहूंगी कि what message you want to convey to me or your audience. वैसे आप बहुत कुछ बोल चुकी हैं अपनी audience के लिए. So मैं सबसे पहले योगिता के लिए बोलना चाहूंगी that you are very good listener and a person whom person can connect and
कैन एक्चुअली इन अ वे कैन हम लोगों को सिखा सकते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है. और इसमें हम लोगों के चैट्स में भी जो अभी लोग थे या गलत बोल रहे थे, गलत लिख रहे थे, उस हिसाब से वट एवर शी हैज डन एंड वट एवर आई एम डन, गाइज नेवर गेट स्कैर्ड ऑफ एनीबॉडी. क्योंकि ये जो लिखने वाले लोग होते हैं ना, ये सिर्फ लिख सकते हैं, ये आपको हार्म नहीं कर सकते. सो ऑलवेज रिप्लाई देम द वे दे वांट इट. तो यस, एंड सेकेंडली प्लीज अपनी लाइफ में जो जो आप लोग कर रहे हो, आपको लगता है आप कर सकते हो, वेदर इट्स डांसिंग, व्हाटएवर आपको लगता है आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो, प्लीज डू दैट. और जो चीजें चमकती है जरूरी नहीं है पास जाके भी चमके. सो प्लीज डोंट रश आफ्टर समथिंग विच इज वेरी शाइनी. And keep loving your parents right now, and after that also always, because I feel like they are the only people who are more real to you and जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे. And just keep smiling. मुझे और योगिता को फॉलो कर लेना. Thank you so much, ma'am, because you know I really love the way you speak here, because I actually waited for these kind of people. कि at least आके कुछ real तो बोलो, fakeism कितना तक करोगे. So मुझे ना ऐसे The way you loved the session, I loved your hairstyle. thank you. I did it. You did it. Don't tell me. Guys, फिर तो मैं भी इसको फॉलो कर रही हूँ अभी इस लड़की को, because she is very talented and I mean she deserves it. She deserves a follow. Thank you so much. So join both the sessions and guys, lots of love. Yeah, Stay like this. tell me. Don't change. Stay like this. मैं फिल्म देख रही थी बैटमैन, तो उसमें एक डायलॉग है कि either you die like a hero or live long like a villain. So I feel to live long like a villain is more good to die like a hero. And faking around की सब अच्छा था, सब गुडी गुडी था, and दुनिया हमसे कितना भी बुरा कर ले, हम तो अच्छा ही करेंगे. तो वो चीज करके नहीं जीना, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो look at her, she's such a cute girl. She's listening to me like very very nicely. I love her.